جی اب آپ کے کچھ سوالات لیں گے جن کے جوابات اسد عمر صاحب، عمران خان صاحب اور جہانگیر خان ترین صاحب لیں گے۔ عمران خان صاحب، میں جاوید شہباز کا نام ہے اور آپ بات ہوں، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آج نیشنل پالیسی ہے، آج اس تقریب میں باس بھائی اسلام آباد کیمپر کے علاوہ کوئی صنعت کار، کوئی سرمایہ کار بڑا موجود نہیں ہے، کیا ان کے ساتھ رابطے کم تھے؟ دوسرا، فیصل نے کہا کہ آپ چند ہفتوں میں وزیر کا چارج لیں گے، لگ رہا ہے کہ آپ نگران وزیر رکھتی آ رہے ہیں، الیکشن تو مئی میں ہو رہے ہیں سر۔ تھینک یو۔ یہ فیصلہ آباد سے بیٹھے جی آئے انڈسٹریلسٹ، یہ پیچھے بیٹھے جواب دیں۔ انڈسٹری مسئلہ یہاں پہ ہے اور ابھی پچھلے ہفتے بوربن میں کانفرنس تھی، اس کانفرنس کے اندر جو 38 بڑے چیمبر ہیں پاکستان کے، کراچی، لاہور، فیڈریشن سب موجود تھے، اور ان کو میں یہ سب ان کے ساتھ یہ پالیسی شیئر کر کے آیا ہوں، تو یہ فیڈریشن کی انپوٹ کے ساتھ آئی۔ اور سر یہ جو پالیسی ہے یہ میڈیا کے سامنے آج رکھ رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ پالیسی آفیشلی اناؤنس کی جا رہی ہے، اس لیے اس میں ضروری نہیں سارے آئیں گے کیونکہ میڈیا کے ذریعے سب کو پہنچ جائے گی، اور پلس ہماری ویب سائٹ پہ چلی جائے گی یہ پالیسی۔ جی ہاں، پرائم منسٹر کیا دیکھیں جب تک پرائم منسٹر پبلک مینڈیٹ سے نہیں آتا وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، کوئی اصلاح نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ الیکشن جیت کے آئیں گے، اور 23 تاریخ کو تیار رہیں۔ وہ جو کہہ رہے تھے کہ سونامی نہیں نظر آ رہی، 23 تاریخ کو انشاءاللہ سب کو نظر آئے گی ہمارے پاس۔ یار آگے سے مغل میں ادھر Hello, I have so many questions. میں ٹیکنیکل آدمی ہے، سوالات کروں گا، پریزنٹیشن پر اسکوپ کرتی ہے، میں ایک مبارک دوں گا، ہمیں کسی چیز کرنی just need one honest leader, and he is going to be prime minister. جی ادھر دیکھیے گا۔ ہلو خان صاحب، آپ کے ساتھ میرا نام مظہر اقبال ہے، میں چیف رپورٹر ہوں ATV سے۔ خان صاحب، آپ کے پیپرز پہ پالیسی نہ صرف انڈسٹریل اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ پالیسی بڑی اچھی ہے، بلکہ آپ دیانتدار بھی ہیں، محنتدار بھی ہیں، اور پالیسیز بھی بڑی اچھی دیتے ہیں۔ شروع میں آپ کہہ رہے تھے کہ چاروں صوبوں میں سویپ کریں گے، آپ کے ٹیلیویژن پروگرامز جو ہے وہ ریکارڈ میں، لیکن میں پچھلا ایک پروگرام دیکھا، تھوڑی سی مایوسی اس پہ یہ ہوئی کہ آپ نے ایک صوبے کو چھوڑ دیا، آپ نے کہا میں سسپینس رکھ رہا ہوں، 3 صوبوں میں تو سویپ کریں گے اور ایک صوبے میں ویکنسی سچویشن ہے۔ ہاں صاحب، یہ ریورس کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ اگر آپ سویپ نہیں کریں گے، گورنمنٹ نہیں بنائیں گے، لیجسلیشن نہیں کر سکیں گے، تو یہ پیپرز پہ جو اتنی اچھی پالیسیز ہیں اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے؟ تھینک یو۔ جو میں کہہ رہا، آپ کا جو وہ سوال جس کا میں جواب دے رہا تھا، یہ 23 مارچ سے پہلے کی بات ہوگی۔ 23 مارچ کے بعد اور حالات ہو جائیں گے انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے وہ چوتھا صوبہ بھی پکڑ لیں گے، فکر نہ کریں۔ جی ان کو دیکھیے گا۔ میں سب سے پہلے تحریک انصاف کو اتنی اچھی پالیسیز پاکستان کے عوام کے لیے جنہوں نے اتنی محنت کے بعد بنائی گئی ہے، مبارکباد پیش کروں گی، اور تھینک یو سو مچ سر، اور آپ سب لوگوں کا اس کا شکریہ۔ میں اپنے تحریک انصاف کی کارکن ہوں اور میں اسلام آباد میں کام کرتی ہوں۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ پالیسی بہت اچھی تھی اور ہمیں آپ لوگوں نے بتایا کہ آج کل تو سچویشن کیا چل رہی ہے ان کی اور جو پہلے تھی کچھ سال پہلے کی، لیکن ایک سوال میرا یہ ہے کہ آج کل جو ہمارے حالات ہیں تو انڈسٹری ہماری بالکل بیٹھ گئی ہے، ہمارے جو ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی بے روزگار ہیں، جو منزل پہ کام کرنے والے عام مزدور ہیں وہ بھی
भी बेरोजगार थे। तो अभी जो इंडस्ट्री की पॉलिसी है इससे इमरजेंसी बेसिस पे कुछ है, कोई प्रोजेक्ट इस तरह है कि इंडस्ट्री चलना शुरू हो जाए। इंडस्ट्री चलना शुरू हो जाएगी तो लोगों को वेजिंग काम करने बढ़ेगी और जो सोसाइटी में क्राइम्स हो रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा कमी आ सकती है। और सर से मेरा ये सवाल है कि स्किल्स डेवलपमेंट की है, तो बड़े शहरों में तो ये स्किल्स डेवलपमेंट के जो कॉलेजेस है या इंस्टीट्यूट है वो काफी होते हैं, लेकिन जो छोटे शहर है उनमें अब तो हमारी ये बहुत ही कम है। जैसे मेरा कॉलेज पद्मी से है, हमारे पूरे सिटी में सिर्फ एक ही कॉलेज है, बहुत दूर है, जहाँ तक हमारे बाकी गाँव के छोटे स्टूडेंट्स होते वो किराए ज्यादा होने की वजह से पहुँच नहीं है। तो सर इस सिलसिले में आप लोग प्लीज बताएं। थैंक यू सो मच। चलिए आपका सवाल इमरजेंसी यहाँ के ऊपर नौकरी। मैंने आपको पहले ही बताया, दो चीजें जिसकी वजह से आपकी इस वक्त बिल्कुल सनत रुकी हुई है, एक जो एनर्जी का प्रोग्राम है और दूसरा जो है सरमायाकारी जो खत्म हो गई है। एनर्जी की जो पॉलिसी हमने डिटेल दी थी उसके अंदर बेहतर मैनेजमेंट से आप जो है खातर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और एटलीस्ट वो सनती इदारे जो लाखों लोगों को रोजगार फराहम करते हैं कम से कम उनको आप गैस और बिजली फराहम कर सकते हैं। फिर आप बेहतर करें। टोटल लोड शेडिंग नहीं खत्म हो सकती फौरन, उसमें कोई 2-3-4 साल लगेंगे इसी तरीके से गैस में, बट ये तो इमीडिएटली हो सकता है। जहां तक स्किल्स की आप बात करी थी, मैंने खुद काम किया है इसके अंदर। हमने पंजाब में बिल्कुल जनूबी पंजाब में छोटे छोटे जो इलाके हैं वहां तक भी स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम मैं आपको डिटेल अलग से बता सकता हूँ। तो इंशाअल्लाह बच्चों में बच्चों को बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर के पास ही स्किल डेवलपमेंट। जी अब इसमें मेरा ताल्लुक क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से है और साथ में स्टेट का है, कमेटी का चेयरमैन। माशाल्लाह बहुत डिटेल और कम्प्रिहेंसिव आपने डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी दी है। इसमें सिर्फ 3 चीजें मैं और ऐड करना चाहूँगा अगर हमारे साहब माने तो। नंबर 1 बात यह थी कि जैसे जो मुझे 18 साल हो गया मैं इंडस्ट्री चला रहा हूँ और मैं खुद एक बैंकर चला रहा हूँ। हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल सीरियस नहीं है हमारी इंडस्ट्री को चलाने की। ये मैं आपको पक्की बात कहता हूँ। हमारी इंडस्ट्री इस वक्त टोटली इंटरनेशनल माफिया के नीचे काम कर रही है। मखसूस एक लॉबी है और वही अपनी पॉलिसीज देते हैं और उसी की वजह से हमारे मुल्क का ये हाल हो गया है। इस वक्त हमारे पास रोजगार का इंतजाई भुगतान है। सेकंड बात मेरी है कि हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी को सूबा फोकस करना चाहिए, क्योंकि हर सूबे के अपने अपने मसाइल हैं, हर सूबे के अपने अपने रिसोर्सेज हैं, हर सूबे का अपना अपना क्लाइमेट है। अब फॉर एग्जांपल मैं केपीके को लेता हूँ, केपीके का जो क्लाइमेट है वो फार्मास्यूटिकल के लिए और ये हाईटेक इंडस्ट्री के लिए एमटीआई मौजूद है। यानी एक इंडस्ट्री को हम अगर कराची में लगाते हैं तो उसका एनवायरमेंटल और उसकी वो क्वालिटी कंट्रोल और उसका वेदर कंट्रोल करने का जो खर्चा आता है उसी कीमत में केपीके में वो इंडस्ट्री लग सकती है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जिक्र हुआ एकेडमिया इंडस्ट्री लिंकेज का, तो मैं ये बात यहाँ पर ये कहना चाहूँ कि केपीके को ये एजाज हासिल है कि एकेडमिया इंडस्ट्री लिंकेज हमने मिसालपुर इंडस्ट्री स्टेट में क्रिएट किया और जिसके एवज हमें 100 बिलियन रुपए का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फायदा होगा। और जो चौथी बात यह है कि हमारे जो लोग ये कहते हैं कि भाई हम और मजीद इंडस्ट्री लगाएंगे, बिलीव करें इटली के बैंकर इटली के इंडस्ट्रियल, मैं ये दावे से कहता हूँ कि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त मौजूद है हम उसमें सिर्फ 25% इस्तेमाल कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारे पास फाइनेंसेस नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है। अगर हम इस 25 को इनहांस करके और हम उसको 75% पर लेके चले जाए तो 200% हम अपनी जो है हर किसी चीजों पर बच जाएगा। ठीक है, शुक्रिया। अच्छा जी, गुजारिश ये है कि सवाल अगर कोई हो तो जरूर पूछिए और बड़ा मुख्तसर रखिएगा ताकि ज्यादा लोगों को मौका मिल सके। जी हेलो जी, खान साहब इधर जहाँ से हमारी खान साहब सवाल आपसे ये है कि अभी आपने ये पॉलिसी पेश की, माशाल्लाह काफी अच्छी पॉलिसी। ये कहेगा कि अगर आप बरसर इक़्तिदार आते हैं जिन लोगों ने कर्जे माफ कराए हुए हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं
जिन्हें करते मार्क रहे हैं, आप उनके खिलाफ भी एक्शन करेंगे कि ऐसी रिपोर्ट है किस तरह कुछ सियासतदान आपकी जमात में भी मौजूद है, आप उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। दूसरा सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इसका चैलेंज है वो दहशतगर्दी है, उसके हवाले से अपनी पॉलिसी कब लेके आ रहे हो, खास तौर पर जो कि रिसेंटली जो मुल्क के अंदर सेक्टेरियन किलिंग हो रही है, इसका क्या समझते हैं? कोई गर्मी ताकतें मुलविस हैं, कुछ अंदर से लगी है, आप क्या 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 समझते हैं सारे मामले? मेरे ख्याल में आखिरी 2 सवाल इसके बाद ले लें। देखिए, सबसे पहले तो जो डिफॉल्टर्स हैं उनको तो जिन्होंने कानून तोड़ के डिफॉल्ट किया हुआ वो एक फर्क है, जो कि जनरल बिजनेस डिफॉल्ट है वो फर्क है, तो इनमें इतिहास करना पड़ेगा। लेकिन जो असल आपको बात पूछनी चाहिए कि जो पैसा पाकिस्तानियों का मनी लॉन्ड्रिंग करके और चोरी करके बड़े बड़े हमारे पॉलिटिशियंस का बाहर पड़ा है, इसका क्या करेंगे? क्योंकि ये है असल पैसा, ये पैसे को हम ले आए तो इंशाल्लाह हमारे पास इतना पैसा हो जाएगा कि शॉर्ट टर्म में जब हम हमारा डेफिसिट जो रेवेन्यू और उसका एक्सपेंडिचर रिकवर कर सकते हैं, वो पैसा सिर्फ वो लोग ला सकते हैं जिनका अपना पैसा बाहर भी पड़ा। यानी ये दोनों पार्टीज नहीं ला सकती, क्योंकि उनको पता है कि अगर इन्होंने प्रोसीडिंग शुरू की तो ये खुद इनके लीडरशिप का पैसा बाहर पड़ा, वो इंशाल्लाह हम आपको करके दिखाएंगे। और आपने जो सेक्टेरियन का कहा, सेक्टेरियन के अंदर बिल्कुल फॉरेन एलिमेंट भी है, जिम्मेदार पाकिस्तान गवर्नमेंट है। पाकिस्तान गवर्नमेंट 2 तरह है कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट में बैठी हुई पार्टीज खुद तहफ़्फ़ुज़ दे रही हैं सेक्टेरियन दहशतगर्दों को, और ये तो खैर ओपन हो गया कि कौन पार्टीज तहफ़्फ़ुज़ दे रही हैं। और दूसरी चीज, जब तक पुलिस को गैर जानिबदार ना बनाया गया, जब तक पुलिस से एक दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाया और दूसरों को पकड़े, तब तक कभी इस मुल्क में कानून लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं हो सकता। जी, लेफ्ट। Yes, I am Nair, concerned Pakistani only. I've been following your policy presentations rather regularly. और बुनियादी मेरा सवाल ये है कि किसी भी मुल्क की हर किस्म की पॉलिसी जो है वो फ्लो करती है नेशनल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में से, लेकिन ताहाल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इंक्लूडिंग तहरीक इंसाफ क्लियर कट डिफाइंड नेशनल एम्स और ऑब्जेक्टिव्स नहीं किए। मोस्ट ऑफ द प्रेजेंटेशंस essentially speaking end up as rhetoric. We hear things which we want to hear, corruption खत्म करेंगे, हम आपको बिजली दे देंगे, it's all sound wonderful, लेकिन क्या हमने एक इंटीग्रेटेड रोड मैप बना के दिया है काम को कि हम कैसे करेंगे? We lost everything in 30 years, 5 years will not recover it, लेकिन इन 5 साल में कर क्या लेंगे? So we have a road map. मैं जवाब देता हूँ। एक छोटी सी मैं जवाब देता हूँ। Today's presentation, if I joined halfway down, I would have thought I've walked into your education policy and not industry policy. So half of this stuff should have been dealt with in your education policy, otherwise that is incomplete. मैं अर्ज कर रहा हूँ, आपने अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया अभी, क्योंकि आपने कहा कि एक नेशनल विजन होनी चाहिए और इंटीग्रेटेड पॉलिसी होनी चाहिए, और फिर जब इसके अंदर हमने एजुकेशन डाला तो आप कह रहे हैं कि स्कूल्स में होना चाहिए। असल में तो ह्यूमन डेवलपमेंट इज द वे एनी कंट्री, आप एशियन टाइगर्स देख ले, सारों ने पहले तालीम पे जोर लगाया तो फिर डेवलपमेंट आई, और चाहे जापान को देख ले। नंबर 1, नंबर 2, ये कहना कि ये रेटरिक है, ये तो आप किसी को कोई भी पॉलिसी लेगा आप कहेंगे है जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगी, लेकिन दुनिया के अंदर कोई भी आज तक गवर्नमेंट करने से पहले ये नहीं कहता कि मैं अवाम दुश्मन हूं। सारे अवाम का फायदा करते हैं और ज्यादातर फेल हो जाते हैं, लेकिन कई अवाम का फायदा कर देते हैं। तो ये कहना कि क्योंकि आप कह रहे हैं और इम्प्लीमेंटिंग तो ये रेटरिक है, दिस नॉट ट्रू। ये पॉलिटिकल विल की जरूरत होती है, जिन लोगों के पास पॉलिटिकल विल होती है वो अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करवाते हैं। जो रेटरिक करते हैं और अपनी जात को आगे रखते हैं, जिस तरह महात्मा ने कहा था कि या एक प्राइम मिनिस्टर अपने लिए पैसा बना सकता है या मुल्क के लिए बना सकता है, दोनों नहीं हो सकता। वेरी क्विकली मैं सिर्फ एक मिनट में ऐड कर दूं, जब कोई आपने एग्जांपल दी कि से बताया नहीं आपने, we have dealt with at a level of detail where I can tell you machine by machine the entire electrical power generation system of Pakistan, which one will be revamped,
capacity, which fuel it will move into, how the railway sidings will connect, which one doesn't have space for the additional boilers, where the coal will land, how will it transport it. That's the level of detail we'll talk about. अच्छा जी, आप 3 सवाल और लेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जी। मैं उनकी गुजारिश ये है कि हर व्यक्ति की बड़ी चुनौतियां जो ये बड़े लीडर होते हैं उनके चंद एक स्लोगन होते हैं, जैसे क्या है यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन, उनको सामने रोकने करता हूँ। मेरी गुजारिश ये है कि इंसाफ स्लोगन ये रखे, करप्शन का खात्मा और मकसद तालीम का फरोग, बस ये 2 बातें हैं। इनमें अगर आप अमल करें तो सारी पॉलिसी आपकी इसके अंदर आ जाएंगे। ये मेरी गुजारिश है कि मकसद तालीम का फरोग और करप्शन का खात्मा। जी आसमा। जी इमरान बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ये इंटीग्रेटेड पॉलिसी है स्किल डेवलपमेंट, और इसकी शुरुआत बल्कि एजुकेशन से होती है। और मेरा क्वेश्चन बल्कि सजेशन या जो भी समझ लें ये है कि आप स्किल डेवलपमेंट स्कूल से शुरू करें। और इमरान आपने काफी एग्जाम्पल्स दिए हैं मलेशिया और इंडोनेशिया, सिंगापुर वगैरह के, तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इंडोनेशिया में जहाँ ओबामा साहब भी एक मदरसे में पढ़े हैं, वहाँ मदरसे का करिकुलम में स्किल डेवलपमेंट क्लास 8 से कंपल्सरी है, और क्यों ना हम वो भी अपने एजुकेशन सिस्टम में इंकॉर्पोरेट करें, वे क्लास 8 ऑनवर्ड्स कोई हुनर हर बच्चे को सीखना लाजमी है। शुक्रिया। बहुत थैंक यू जी। जी राइट साइड पे जो सेकंड क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल जब्बार शाह है, मैं फैसलाबाद से आया हूँ, मैं इंडस्ट्री ऑनर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। खासा कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा कि हमारे फैसलाबाद में पिछले 2 माह से फिजिकली मिलों की इंडस्ट्री की लाइट्स कटी हुई है, बिल्कुल एनर्जी नहीं मिल रही, गैस नहीं मिल रही, और मिलें पिछले 2 माह से बंद है। लेकिन वहाँ के ताजर जो है वो आप पे ये एतराज करते हैं कि आपका कोई बयान उनके हक में नहीं आता। प्लीज इस पे थोड़ी सी गौर फरमाइएगा। दूसरा, मैं आपको एक सजेशन और देना चाहूंगा कि आप विजिट करें हर जिले में, बड़े जिलों के चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ताकि वहाँ के ताजर भी आपके साथ मिले। दूसरा, ताजरों के टैक्सों की वसूली पर आप बहुत ज्यादा असरार करते हैं, इससे एक नून लीग वाले जो है, मेरा ख्याल है कि वो ये एक इम्पैक्ट डाल रहे हैं कि जनाब ये आपके गर्दनों पे और उठा पाएंगे और टैक्स ज्यादा लेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। हम तो पहले ही बहुत ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन सही नहीं है। तीसरा, आप छोटे ताजरों के साथ लास्ट मैं अर्ज कर दूं, वो नून लीग वाले ठीक डर रहे हैं क्योंकि नून लीग वालों से मैंने टैक्स लिखवा लिया। तीसरा, छोटे संस्थों के लिए आप जब भी कोई अपनी पॉलिसी अनाउंस करें तो प्लीज उनको थोड़ा सा ये जरूर हौसला दिया करें कि आपको कर्जे दिए जाएंगे। और जिन दोस्तों ने कहा है कि ताजर नहीं आए हैं, यहाँ पे बहुत सारे ताजर बैठे हैं लेकिन कुछ शर्माते हुए उठना नहीं चाह रहे। थैंक यू वेरी मच। मैं सर एक चीज बात कर, हमने जी हमारी डेलीगेशन गई तुर्की, प्राइम मिनिस्टर अर्दोगान से मिले हम, और तुर्की आपको पता है चाइना के बाद 2nd फास्टेस्ट डेवलपमेंट ग्रोथ रेट है तुर्की की दुनिया में। तो हमने उनसे काफी चीजें पूछी कि कैसे उन्होंने चेंज किया। मेनली तो गवर्नेंस सिस्टम था कि तुर्की ने गवर्नेंस सिस्टम ठीक किया जिसकी वजह से करप्शन खत्म हुआ और वहां ऊपर गए। लेकिन एक और काम है तुर्की में, इंशाल्लाह कामयाब करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटेरिएट में एक पूरा ब्लॉक बना हुआ है जिसका सिर्फ एक मकसद है, सारा दिन कोई भी बिजनेस हो, उनको कोई किसी किस्म का ब्यूरोक्रेसी प्रॉब्लम आए, वो सीधे प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटेरिएट कॉल करते हैं जो कि फिर इन्वेस्टिगेट करता है। यानी प्राइम मिनिस्टर अपने ऊपर जिम्मेदारी ली हुई है कि बिजनेसेस की पूरी मदद की जाए, जिस किस्म की रुकावटें वो हटाई जाए, और जब भी प्राइम मिनिस्टर अर्दोगान टूर करते हैं बाहर, उनके साथ हमेशा एक नया डेलीगेशन बिजनेसमैन का जाता है बाहर के मुल्क में। तो उन्होंने इंटेंशनली बिजनेस को प्रमोट किया, बिजनेस की जिंदगी आसान की है। ये जो भी आपने कहा कि टैक्स, सबसे ज्यादा बिजनेसमैन को ये नहीं है प्रॉब्लम कि टैक्स देना या नहीं देना, उनको प्रॉब्लम ये है कि वो टैक्स के डिपार्टमेंट से फंस जाते हैं और वो जो उनसे करते हैं। तो इसलिए
یہ جو آئیڈیا ہے کہ آپ بزنسز کی زندگی آسان کریں، کیونکہ جتنا بزنس کا راستہ آسان ہوگا اتنا زیادہ انویسٹ کرے گا، خوشحالی آئے گی، لوگوں کو روزگار ملے گا. تو انشاءاللہ وہ ہم نے ان سے وہ ماڈل لیا ہوا ہے کہ ایک خاص سیل بنے گا جس کا صرف صبح سے لے کے شام تک کام ہوگا. کوئی رکاوٹ ہے وہ فوری طور پر اس ڈپارٹمنٹ میں ٹیلی فون کرے اور پوچھے کیوں. لیکن اس کی یہ ہے کہ اس کی وجہ ہے کہ پرائم منسٹر اردوغان خود ایماندار آدمی ہے، اپنی فیکٹریاں نہیں چلا رہا، خود مال نہیں بنا رہا. اور ایسے جب تک انٹیگریٹی پرائم منسٹر کی نہ ہو، کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا قانون ہو کہ آپ بزنس میں آپ پالیٹکس میں آگے بزنس نہیں کر سکتے، یہ وجہ ہے کہ وہ ان کے ملک آج ترقی کر رہے ہیں. لیفٹ سائڈ لاسٹ کوشچن. جی سید احتشام اظہر، میں پاکستان لیدر گورنمنٹس ایسوسیشن کا چیئرمین ہوں اور آئی ایم فرام سیالکوٹ. میں اسد صاحب کو ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ مختلف سیکٹرز کو بھی فوکس کریں اور جب ڈیولپ کرتے ہیں پالیسیز تو اس میں ایسوسیشنز کو انوالو کریں، اور اپنے جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ ایسوسیشنز کو ٹی ڈی ایف کے اندر انوالو کریں. ایسوسیشن کا چیئرمین شوڈ بی پارٹ آف ٹی ڈی ایف. اس میں جو بھی پالیسی بنے وہ ایسوسیشن کی کنسلٹنسی سے بنے. تھینک یو. یہ بالکل بہت اچھی آپ کی ریکمنڈیشن ہے جی. اگر آپ ہماری دیکھیں پریزنٹیشن تو اس کے اندر ہم نے جو ٹی ڈیپ ریفارم کا دیا ہوا ہے اس میں ہم نے لکھا ہی یہ کہ ٹی ڈیپ شوڈ بی ڈریون بائی دا پرائیویٹ سیکٹر. اور عمران خان صاحب کو یہ میں بتاتا ہوں، ان کو خوشی ہوگی سن کے جو پاکستان کے سب سے پروگریسو بزنس مین دے آر سیالکوٹ میں، جو سب سے اچھی ایسوسیشن ہے سیالکوٹ میں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جن